We are at this topic, parts of a flower, and we have completed these four whorls of a flower, that is calyx, corolla, and androecium. Today we are going to study the last and the innermost whorl of the flower, that is gynoecium. Here you can see the structure of pistil, or we also call it as carpel. So that is the innermost whorl in a flower out of these four whorls. So today we will study about it, the gynoecium. And it is gynoecium is the female reproductive part of a flower, female reproductive part of a flower. We also have studied it under the essential parts of a flower. Why essential? Because it helps in sexual reproduction in flowering plants. So that is gynoecium, and it is the female reproductive part, and it is having, or it is made up of one or more carpels, or the other name of carpel is pistils. Clear? So that is the gynoecium. एंड gynoecium, जैसे कि हमने स्टेमन्स के लिए कलेक्टिव टर्म किया था एंड्रोशियम, वैसे ही कार्पल्स और पिस्टिल के लिए कलेक्टिव टर्म क्या है? द टर्म इज gynoecium. If gynoecium or a pistil is sterile, clear? If it is sterile, a sterile pistil is called pistilode. टर्म याद रखनी है, द टर्म इज pistilode, sterile pistil. If that doesn't produce seeds, or if that doesn't form ovules, that type of pistil is called pistilode. And the three parts of a pistil, अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल pistil ड्रॉ करूँ, so these are the three parts. The lowermost swollen part is ovary, then style, long tubular structure, and this is the stigma. That ovary contains ovules. Clear? ये जो ovules हैं, after fertilization they will be converted into seeds, and the ovary, after fertilization and growth, the ovary will be formed as a fruit. Clear? And the style जो यहाँ पे है, that is the connective part between ovary and stigma, जो ovary और stigma को connect कर रहा है. Clear? And here is stigma. What is the function of stigma? We have studied it in our earlier classes, that stigma is the landing surface for pollen grains. During pollination क्या होता है? Pollen grains, they will fall on the sticky stigma. Sticky stigma उसको लैंडिंग के लिए हेल्प करता है, और यहाँ से फिर थ्रू पॉलन ट्यूब वो कहाँ तक जाते हैं? ओव्यूल्स तक जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है वहाँ पे. क्लियर? तो यहाँ पे क्लियर हो गया. ओव्यूल सीड्स बनेंगे और ओवरी फ्रूट बनेगी, और जो ओवरी की वॉल है दैट विल फॉर्म द फ्रूट वॉल. क्लियर? वॉल ऑफ ओवरी will be converted into fruit wall, and that fruit wall is also called pericarp. Carp for fruit, pericarp, fruit wall. Now next we will study according to the number of chambers जो ovary है. Next will be types of ovary according to number of chambers. Number of chambers. So there are different types. So first type under this category is unilocular ovary. Unilocular
ovary. Unilocular ovary, uni stand for single. So single chambered ovary is called unilocular. Single chambered. Example in this case is that of the pea. Example is of pea. आपने देखा हुआ है pea fruit, जैसे उसमें ऐसे रहता है पी का, और यहाँ पे हम ओव्यूल्स देखते हैं क्लियर, जो बाद में क्या बन जाते हैं, वो सीड्स बन जाते हैं. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो सिंगल है, ये पूरा सिंगल दिख रहा है ना चैम्बर, सो दैट इज अ सिंगल चैम्बर एंड द काइंड ऑफ ओवरी इज कॉल्ड unilocular ovary. So get it, according to the number of chambers, the first type is unilocular ovary. Then the second type is bilocular ovary. So bilocular ovary में क्या होगा, bi stand for two, so the two chambered ovary. Two chambered ovary. तो इसमें एग्जाम्पल है सोलेनम का. सोलेनम जो सोलेनेसी फैमिली है उसमें जो चैम्बर्स रहेंगे वो 2 रहेंगे, और उसमें जो कंडीशन होती है एक स्लाइटली टिल्टेड की होती है. जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ उसका कट सेक्शन, तो ये उसमें पोजीशन रहती है, ऐसे उसमें 2 चैम्बर्स होंगे, क्लियर. और यहाँ पे पूरे उसमें ओव्यूल्स होंगे, क्लियर. सो दैट इज द 2 चैम्बर्ड ओवरी, जिसमें कितने चैम्बर्स हैं, 2 चैम्बर्स हैं. देन थर्ड टाइप इज ट्राइलोक्युलर. Trilocular ovary. So in trilocular, tri stands for 3, that is 3 chambered ovary. 3 chambered ovary. Bilocular में ये नहीं है कि ऐसे ही रहेगा, टिल्टेड ही रहेगा, सिंपल ऐसे ये भी केस रहता है जिसमें ये सेप्टम देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है. तो 2 याद रखना है कि नंबर 2 है, ये सेप्टम की पोजीशन अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग होती है. सो नेक्स्ट वन इज द 3 चैम्बर्ड एंड द एग्जाम्पल हियर इज example of 3 chambered ovary that is found in case of ovary of onion. So in 3 chambered ovary there are 3 chambers. So here you can see there are 3 chambers in this ovary, clear, and the example is of onion. Then fourth is tetralocular. 4 chambered. Example here is Ocimum. Ocimum sanctum, जो तुलसी प्लांट है, ठीक है, that is the ocimum and that is having 4 chamber in its ovary. Fifth 4 chambers बनानी हो तो कैसे बनाओगे आप, सिंपल है, you will make 4 chambers. So here is 4 chambered ovary. I am not drawing ovules here, clear. Ovules are present in these chambers, clear, but we are focusing at the types of ovary according to the chambers. So सिंपल चैम्बर शो कर रहे हैं, टेट्रालोक्युलर, एंड द एग्जाम्पल इज ऑसिमम. नेक्स्ट इज 5 चैम्बर्ड एंड मल्टीलोक्युलर. देन फिफ्थ टाइप इज पेंटालोक्युलर हैविंग 5 चैम्बर्स. एग्जाम्पल इसमें क्या रहेगा, चाइना रोज, 5 chambers, 5 chambered ovary, and example is of China rose.
can draw 5 chambers ovary. So how many chambers will we draw? We will draw 5 chambers. फाइव चैम्बर्ड ओवरी. एंड एग्जाम्पल चाइना रोज. इसको सिंपल जो चाइना रोज होता है आपके होम में, उसकी ओवरी निकाल के ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके, ट्रांसवर्स सेक्शन क्या है, जैसे इस तरह है ओवरी, तो कैसे उसको कट करना है, आपने ऐसे कट करोगे. आप उसको ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में नहीं कट करना है, उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करना है, तो आपको उसके चैम्बर्स विदाउट माइक्रोस्कोप दिख जाएंगे. क्लियर. इसके लिए डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं जब ओवरी का सेक्शन कटिंग करते हैं. तो जो चाइना रोज है उसमें सिंपल आपको दिख जाएगी इसमें 5 चैम्बर्स इसके विदाउट डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप. देन द 6th टाइप इज multilocular ovary. Multilocular ovary having many chambers. The ovary is having many chambers. So example here is Aldea. Aldea is the example of multi-chambered ovary. Here you can draw more than 5 chambers. That kind of ovary is called multilocular ovary. Next we are going to study about the number of carpels. Clear? Number of carpels के according जो types of gynoecium है, ये हमने कर लिया. जो types of ovary है, क्लियर, ये हमने सिंगल पिस्टल लिया और उसके अंदर ओवरी देखी. क्लियर. सिंगल पिस्टल को कट करके, जैसे ये यहाँ पे ड्रॉ किया, सिंगल पिस्टल है, इसको कट करके हम देख रहे हैं कि अंदर कितने चैम्बर्स हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ कार्पल्स. जो गायनोशियम है एक, ठीक है, जिसमें कितने कार्पल्स हैं, कितने पिस्टल्स हैं, उसमें सिंगल है या डबल है या ट्रिपल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट कैटेगरी स्टडी करेंगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है. सो व्हाट विल राइट द types of gynoecium. Types of gynoecium depending upon the number of carpels present. Clear? So in this topic there are 6 types like chambers. So first type is monocarpellary. क्या होगा इसमें? There will be single carpel. Example is again P. Another is delphinium. Another example is delphinium. So in this case there is single. जैसे पी प्लांट का ड्रॉ करें तो ऐसे है इसमें. क्लियर. दैट इज सिंगल पिस्टल. यहाँ पे उसमें स्टाइल और स्टिग्मा होंगे. Single pistil is present, single carpel is present. Second type is bicarpellary. Bicarpellary gynoecium. So वहाँ पे जो number of carpels रहेगा that will be 2. 2 carpels or pistils. Example here is Calotropis. Calotropis procera. That is the example. तो यहाँ हम जैसे मान लो ये कंडीशन क्या है, सिंगल कार्पल है, तो सेम ऐसी मैं क्या करूँ, एक कार्पल और ड्रॉ करूँ, तो कितने कार्पल हो गए? 2 कार्पल्स. देर आर 2 पिस्टल्स और 2 कार्पल्स.
तो इस तरह की कंडीशन को क्या बोलेंगे, बाइकार्पिलरी। तो वैसे ही नंबर के अकॉर्डिंग उसमें कार्पल्स ये फ्यूज्ड भी हो सकती हैं या फ्री भी हो सकती हैं, उसके लिए टर्म्स हम नेक्स्ट करेंगे। सो वी विल सिंपली राइट द अनदर टाइप्स। ट्राइकार्पिलरी, there will be three carpels. Example here is onion. We will study the flower of onion in detail. There we will see the ovary with the three carpels. Clear? Fourth example, fourth type is tetracarpillary gynoecium, having four carpels, and the example in this case is cotton. When you will see the flower of cotton, there will be tetracarpillary condition, means there will be four carpels or pistils. Then after tetra, as we all know that penta condition is there, that is pentacarpillary. And in pentacarpillary there are five carpels or pistils. In this case the example is again same as that of the pentalocular ovary. Here we are at the pentacarpillary gynoecium, and the example is China rose. There are five carpels, and we will see later that they all are fused. Then sixth is polycarpillary condition. Polycarpillary. There are many carpels. And the example is Aldea flower bolo ya flower bolo. The example is Aldea. Clear? That is according to the number of carpillary. Previous topic we have done that the types of ovary according to the number of the chambers. सिंगल एक ओवरी ली है हमने, उसके हम चैम्बर्स देख रहे हैं, उसको क्या करके उसका सेक्शन कट करके उसमें हम वी आर काउंटिंग द नंबर्स ऑफ चैम्बर्स, एंड दैट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ओवरी. एंड इन द नेक्स्ट here it is the type of gynoecium. जो gynoecium है उसमें कितनी carpels हैं, 1 2 3 4 5 और many carpels और pistils. That is the types of gynoecium, previous the types of ovaries. So these are the types. Next are the two conditions for free and fused carpels. That is, first is apocarpus and second is syncarpus. Apocarpus condition is that condition in which the carpels are free. Clear? We can simply write it as free carpels. Carpels क्या होंगी? They will be more than one. तभी तो वो फ्री होंगी या फ्यूज्ड होंगी. सिंगल कार्पल को हम नहीं बोल सकते कि वो फ्यूज्ड है या फ्री है. क्लियर? सो फॉर दीज टू कंडीशंस देयर विल बी मोर देन वन कार्पल और पिस्टिल. क्लियर? सिंगल को हम नहीं बोल सकते कि ये फ्यूज्ड है या फ्री है. फॉर मोर देन वन वी कैन से दैट द कार्पल्स आर फ्री, द कार्पल्स आर फ्यूज्ड. And syncarpus condition is for the fused carpels. And the examples in the first case are of rose, lotus, and in the fused carpels the examples are of mustard, tomato, etc. So these are the two conditions for free and fused. In case of petals, sepals, we used poly and gamo, but in case of the carpels we used apo as prefix. Apo, syn. Apo for free and syn for fused carpels. Next we are going to study the last topic under the gynoecium, and that is the placentation. We will study the various types of placentation. So the last subtopic under the gynoecium is placentation. And what is the meaning of this placentation? The arrangement of ovules within the ovary.
What is placentation? The arrangement of ovules within the ovary is called placentation. So we will study its type. First type is marginal placentation. So in this type, I will draw the diagram of a pea fruit और pea जो उसकी ओवरी है. Clear? For the ovules, I will draw it with the green pen. यहाँ पे हम देख सकते हैं एक साइड लिया है हमने, ये पी का जो ओवरी है, ये दोनों जब खोलते हैं हम तो दोनों तरफ हमें ऐसे ही दिखता है, दूसरा पोर्शन भी हमें ऐसे ही दिखेगा. सो इस तरह के प्रेजेंटेशन में क्या है, जो ओव्यूल्स हैं दे विल डिवेल्प इनटू टू रोज में डिवेल्प होंगे फ्रॉम अ लॉन्गिट्यूडनल स्यूचर. स्यूचर क्या बोलेंगे, जहाँ पे दूसरा भी अटैच हुआ है. तो मैं यहाँ पे दूसरा ड्रॉ करती हूँ तो दूसरा क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा वो भी. तो ऐसे हम उसमें उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरफ को भी हम क्या करेंगे, उसमें सीड्स ड्रॉ कर सकते हैं. क्लियर? तो टू रोज में है और एक लॉन्गिट्यूडनल स्यूचर है, और जो जंक्शन बिटवीन दीज टू है, यही है ना, बिटवीन दीज टू जो दिख रहे हैं आपको, इसके ओवरी बॉल्स हैं. तो इसके बीच में जो ये स्यूचर है और जंक्शन है, यहाँ पे ये ओव्यूल्स ग्रो किए हैं. क्लियर? जो मार्जिन है और यहाँ पे जहाँ पे ये फ्यूज हुआ है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन क्यों बोला, मार्जिन है दोनों के जहाँ पे वो फ्यूज हुए हैं और वहीं पे क्या हुए हैं, ओव्यूल्स ग्रो किए हैं. क्लियर? और ओवरी कैसी है इस केस में, जो मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, ओवरी इज यूनिलॉक्यूलर. जो हमने इसमें टाइप्स में देखा था, ओवरी इज यूनिलॉक्यूलर. सो एग्जाम्पल वी कैन राइट हियर द एग्जाम्पल जो आपने देखे हुए हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ पी, सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ ग्राम. क्लियर? ग्राम का भी आपने देखा हुआ है. ठीक है, बीन्स है नेक्स्ट, जितने भी तरह की बीन्स हैं एक्सेट्रा, तो उन सब में क्या है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, मार्जिन्स पे ओव्यूल्स ग्रो किए हुए हैं. ठीक है. सेकेंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज एक्साइल प्लेसेंटेशन. सेकेंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज एक्साइल प्लेसेंटेशन. So for this we will draw a trilocular ovary here having the 3 chambers. And from where the ovules will arise, go. That is the एक्साइल प्लेसेंटेशन. तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो ओवरी रहेगी इसमें, द नेचर ऑफ ओवरी विल बी बायलॉक्यूलर टू मल्टीलॉक्यूलर. क्लियर? और ये जो इसमें देख रहे हो आप, ये क्या है इसमें, सेप्टा. इन्हीं सेप्टा की वजह से पार्टीशन हुआ है. और ये ओवरी कैसी है, 3 चैम्बर्ड है. क्लियर? और जो इसमें आप देख सकते हो, जो प्लेसेंटा फॉर्म हुए हैं वो कहाँ है, सेंट्रल रीजन में है. क्लियर? जहाँ पे ये सेप्टा मिल रहे हैं, क्लियर, यहाँ पे सेप्टा मिल रहे हैं और यहीं पे ये प्लेसेंटा है, और यहाँ पे क्या हुए हैं, ओव्यूल्स ग्रो किए हैं. क्लियर? और किस तरह की पिस्टिल्स में रहेगी ये, जो ये वाली प्लेसेंटेशन है,
अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये तो हमने कल लिया कि बायोलोक्यूलर टू मल्टीलोक्यूलर ओवरी होनी चाहिए वहाँ पे, और जो पिस्टल होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सिनकार्पस पिस्टल्स आर देयर। अगेन सिनकार्पस, सिन फॉर फ्यूज्ड, तो 3 जो पिस्टल्स हैं वो क्या हुई है यहाँ पे, फ्यूज्ड, सिनकार्पस पिस्टल है। क्लियर? So that is axile placentation, where the ovules are born, where the septa meet with one another and the center. Clear? And examples in this case, first example is of tomato, second example is of China rose, and third example is of lemon. That of the axile placentation. Third, we will study about the parietal placentation. Third type of placentation is parietal placentation. So इसमें जो रहेगा, जो ओवरी रहेगी, ovary will be unilocular. क्लियर? अगर इसमें ज़्यादा लोक्यूल्स होते हैं, क्लियर, अगर वो मल्टीलोक्यूलर है, इफ द ओवरी अपीयर्स मल्टीलोक्यूलर, दैट विल बी ड्यू टू फॉल्स सेप्टम। हमें देखने में लग सकता है कि मल्टीलोक्यूलर है, उस तरह अपीयर होगी, बट जो सेप्टम रहेंगे दैट विल नॉट बी ट्रू सेप्टम, दैट विल बी फॉल्स सेप्टम। क्लियर? वैसे केस क्या है, जो ओवरी रहेगी दैट विल बी यूनिलोक्यूलर। सो जो इसमें हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट, शोइंग द पैराइटल प्लेसेंटेशन। There are 2 walls of the ovary, inner and outer. Or in case of parietal placentation, placenta will arise from the inner wall of the ovary. Here you can see कैसे arranged है ovules, कहाँ से arise हो रहे हैं, from the inner wall of the ovary. That is the important point. Ovules develops on the inner wall of the ovary, on the inner wall of the ovary. Clear? Inner wall से rise होंगे. And examples are poppy plant, poppy flower में रहेगा, viola and mustard. mustard में आप देखोगे false septum होता है वहाँ पे. फ्लोरल डायग्राम जब हम डिस्कस करेंगे, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट फ्लोरल डायग्राम ऑफ मस्टर्ड. तो सरसों का फ्लावर है उसका देखेंगे हम. सो this is the type of placentation called parietal. The ovules are develops from the inner wall of the ovary. Okay. Next type of placentation is free central placentation. Fourth type of placentation, that is the free central placentation. That is simplest one. We will draw the outer and inner wall of ovary. And that is the way of ओव्यूल्स डेवलपमेंट. क्लियर? तो ओव्यूल्स कहाँ पे बॉर्न हो रहे हैं? सेंट्रल एक्सिस पे.
ovules are born on central axis. और क्या नहीं दिख रहा है इसमें, जो हमें दूसरे में, यहाँ पे भी हमने बोला फॉल्स सेप्टम हो सकता है, यहाँ पे हमने ड्रॉ नहीं किया है, बट देयर इज फॉल्स सेप्टम. जैसे इसमें अगर मस्टर्ड का ड्रॉ करें हम, ये यहाँ पे उसमें फॉल्स सेप्टम होता है. क्लियर? उसमें इनर और आउटर वॉल है, तो ऐसे इसमें ओव्यूल्स राइज किए होते हैं, और यहाँ से भी ऐसे उसमें इनर वॉल से ओव्यूल राइज होते हैं. दिख रहा है ना इसमें? ये मस्टर्ड का एग्जांपल है, यूनिलॉक्यूलर, बट ये जो इसमें है दैट इज द फॉल्स सेप्टम. क्लियर? ओव्यूल्स अगेन कहाँ से राइज हो रहे हैं? दे आर राइजिंग, दे आर डिवेलपिंग फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ द ओवरी. दैट इज द पेराइटल प्लेसेंटेशन. सेप्टम इज देयर. व्हाट काइंड ऑफ सेप्टम? फॉल्स सेप्टम. और यहाँ पे तो हमने देखा एक्साइल में भी सेप्टा है. क्लियर? सो जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज द फ्री सेंट्रल सेप्टा आर एब्सेंट. इन दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन सेप्टा आर एब्सेंट. यहाँ पे हम देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में है ओव्यूल्स डेवलप किए हुए विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सेप्टा. सो एग्जाम्पल इन दिस केस आर, examples are dianthus and primrose. Examples of this kind of placentation. Then the fifth type of placentation is basal placentation. नेम में बेसल आ रहा है तो रिलेटेड विद द बेस, एंड बेस ऑफ व्हाट? बेस ऑफ ओवरी. एंड इन दिस केस दिस द ओवरी एंड थैलेमस. सो जो पोजीशन रहेगी यहाँ पे, ओव्यूल विल डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी. ये यहाँ पे जैसे देखें हम यहाँ पर, दैट इज द थैलेमस, ओवरी स्टाइल. जो ओव्यूल रहेगा दैट विल डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी. दैट इज द बेसल प्लेसेंटेशन, द सिंपलेस्ट वन. एंड द एग्जाम्पल्स आर सिंपल. वी कैन ऑल्सो राइट द सिंगल, जो डेफिनेशन लिखना है इसकी, सिंगल ओव्यूल एट द बेस ऑफ द ओवरी. क्लियर? प्लेसेंटा तो क्लियर है. जैसे मैं ये ओव्यूल ड्रॉ कर रही हूँ, जो इसको अटैचमेंट में हेल्प करता है दैट इज द प्लेसेंटा. क्लियर? जो अटैचमेंट में हेल्प करता है ओव्यूल को विद द ओवरी, दैट इज द प्लेसेंटा, एंड दिस इज द बेसल प्लेसेंटेशन. एंड एग्जाम्पल इन दिस केस आर, एग्जाम्पल sunflower, marigold. These are the examples in basal placentation. So 5 placentation किया अभी तक हमने. marginal placentation, axile placentation, parietal placentation and free central placentation, and here is basal placentation. 2 more types of placentation are there. Type of placentation, apical placentation. बेसल प्लेसेंटेशन में हमने देखा कि बेस ऑफ द ओवरी से अराइज हो रहा है और जो प्लेसेंटा है या ओव्यूल है उसमें. सो इन दिस
Next category, the ovule or the placenta is born at the apex. Clear? ये इसकी इनर वॉल है. क्लियर? तो कहाँ से अराइज हो रहा है? एपिकल रीजन से अराइज हो रहा है. सो वी कैन राइट हियर दैट single ovule is born near the apex of the ovary. एंड ओवरी जैसे कि देखने में ही लग रहा है, द नेचर ऑफ ओवरी इज यूनिलॉक्यूलर. एग्जाम्पल इन दिस केस इज कैनाबिस. द वेरियस स्पीसीज ऑफ कैनाबिस. नेक्स्ट टाइप इज द लास्ट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन विच वी विल स्टडी, सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन. सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन, यहाँ हमने सब में देखा कि ओव्यूल ग्रो कर रहा है और उसमें मैंने एक स्टॉक जैसी ड्रॉ की है सभी में, जो क्या बोलते हैं इसको, जो स्टॉक जैसी ड्रॉ की है ओव्यूल के साथ, प्लेसेंटा बोलते हैं. यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये ओव्यूल है, राउंड स्ट्रक्चर उसमें ओव्यूल, और जो स्टॉक दिख रही है दैट इज कॉल्ड द प्लेसेंटा, जो हेल्प करता है ओव्यूल को ओवरी के साथ अटैचमेंट में. बट जो सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन है उसमें प्लेसेंटा एब्सेंट है. क्लियर? तो उसमें हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. जो ओवरी रहेगी उसमें दैट कैन बी यूनिलॉक्यूलर टू मल्टीलॉक्यूलर. उसके कितने भी नंबर हो सकता है. जो मेन है इसका, दैट मेन इज प्लेसेंटा आर एब्सेंट. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ जो बीच में दिख रहे हैं दैट आर सेप्टा. क्लियर? और जो ये स्पेस दिख रहा है दैट आर द लॉक्यूल्स और चैम्बर्स ऑफ ओवरी. इसमें जो ओव्यूल्स रहेंगे दे विल डिवेल्प विदाउट सेप्टा, विदाउट प्लेसेंटा. उसमें कोई प्लेसेंटा नहीं है, ऐसे ही वो सुपरफिशियल उसमें ग्रो किए हैं विदाउट प्लेसेंटा. सेप्टा पे भी हो सकते हैं वो, ये नहीं कि सेप्टा पे नहीं होंगे, ऑल ओवर द ओवरी. सो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है. सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ ओवरी दैट कैन बी यूनिलॉक्यूलर टू मल्टीलॉक्यूलर ovary. Second important point is ovules are born all over the inner wall and septa. And the last important thing is placenta is absent. क्लियर? जो स्टॉक मैंने ड्रॉ की और टाइप्स ऑफ जो प्लेसेंटेशन की हमने पहले, तो वो स्टॉक इसमें नहीं है. ओव्यूल्स आर बोर्न सुपरफिशियली एंड द एग्जांपल आर बिडोमस एंड निम्फिया. निम्फिया इज योर लोटस प्लांट. जो लोटस की ओवरी रहेगी उसमें भी ओव्यूल्स एज सच ग्रो करेंगे विदाउट प्लेसेंटा. सो here we have completed this topic, parts of a flower.
in which we study the four whorls of a flower. First, calyx, the outermost. Second is corolla. Clear? Calyx is the collective term for the sepals. Corolla is the collective term for petals. Then third whorl is androecium, that is the collective term for stamens. Then fourth one is the gynoecium, the collective term for the pistils or carpels. So this was all about the this topic, the parts of a flower.